Okay, so that's good. So थर्ड क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ये शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से, वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस. अब ये वाला हम लोग अभी पढ़ेंगे. अच्छा राघव प्लीज आप ट्रांसलेशन पढ़ो. Sorry, before you start, we'll do three times. We'll do Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so I'll say it once, then you can unmute yourself and say it, so that we can get into this zone. We are inviting Vasudev, we're inviting Krishna in this class. Okay, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Thank you. Thank you. Now Raghav, you can read from here, okay? All blessings upon you, O Sata Goswami. You know for what purpose of personality of Godhead appeared in the womb of Devaki at the son of Vasudeva. Thank you beta. So ये क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द गॉडहेड. सो अभी देखो कुछ भी भागवतम अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है. भागवतम में अभी सिर्फ थर्ड क्वेश्चन चल रहा है. 12th वर्स है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं शौनकादि ऋषि, है ना. अच्छा राहुल प्रभु आप यहाँ से पढ़ोगे? Yes, प्रभु. Bhagavan means the Almighty God, who is the controller of all opulence, power, fame, beauty, knowledge, and renunciation. He is the protector of his pure devotees. Although God is equally disposed to everyone, he is specially inclined to his devotees. Sat means the absolute truth, and persons who are servitors of the absolute truth are called Satvats. And the personality of Godhead who protects such pure devotee is known as the protector of the Sattvatas. Bhadram Te, or blessing upon you, indicates the sage's anxiety to know the absolute truth from the speaker. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appeared to Devaki, the wife of Vasudeva. Vasudeva is the symbol of the transcendental position wherein the appearance of the Supreme Lord takes place. Thank you, Prabhu. Thank you very much. What a beautiful thing. So, Sudha Goswami, देखो, अगर हमें श्रीला प्रभुपाद ने पर्पट नहीं दिया होता तो हम लोगों को सिर्फ ये पढ़ना था. All blessings upon you, Sudha Goswami. You know for what purpose the personality of God had appeared in the womb of Devaki as a son of Vasudeva. अब सिर्फ ये लाइन पढ़ते हैं. लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने इसे एक्चुअली इतना अच्छे से ड्रिल करके अंदर दिया है. भगवान मीन्स Almighty God, who is controller of all the opulence. वो 5 opulence हम लोगों ने पढ़ी थी ना पिछली क्लासेस में. कौन कौन सी थी? 5 opulence ना प्रभु? Wealth, yes, health, beauty, knowledge, renunciation. Yes, it's here. Power, fame, beauty, knowledge and renunciation. अब जिसके पास ये 5 चीजें पूरी तरीके से हो, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी फेम, थोड़ी सी ब्यूटी, थोड़ी सी नॉलेज, ऐसा नहीं. नीड टू हैव ऑल ऑफ इट, लाइक 100% ऑल ऑफ इट, है ना. हर चीज 100% में होगा तब जाके उसको बोला जाता है कि ही इज भगवान. सो देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज गॉट ऑल ऑफ दिस 5 इन फुल, वो है श्री कृष्ण, है ना. नाउ यहाँ पर बहुत अच्छा वर्स दिया है. ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ हिज प्योर डिवोटीज. ही प्रोटेक्ट्स, वो तो हमें पता ही है ना. विनाशाय वो क्या था? विनाशाय च दुष्कृतम. पहला लाइन क्या था उससे? परित्राणाय साधुनाम. परित्राणाय मतलब जो साधु होते हैं उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट हिज प्योर डिवोटी, है ना. विनाशाय च दुष्कृतम. अब नाउ दिस सेकंड सेंटेंस जो इसमें लिखा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. Although God is equally disposed to everyone, he is specially inclined to his devotees. ऑक्सीमोरॉन नहीं हुआ, है ना, कि भाई एक में तो बोल रहे हैं भाई सबके he is equally disposed to everyone. अब फिर बोल रहे हैं नहीं, he is specially inclined to his devotees. How is this possible? It's an oxymoron. लेकिन भगवान के केस में like it's a general thing. Suppose आपके 2 बच्चे हैं, दोनों में से एक बिल्कुल आपकी बात नहीं मानता है और दूसरा बहुत ज्यादा आपकी बात मानता है. जैसे मातृ भक्त पितृ भक्त बोलते हैं ना, वैसे. जैसे हमारे घर में मैं सबसे छोटा हूँ घर में, और
मेरे बड़े 3 भाई हैं और 1 बहन है। तो हमारे जो बीच वाले ब्रदर हैं राजेश भैया, he was इतना we used to call him वो श्रवण कुमार है ना। मम्मी ने एक बार बोल दिया तो वो उसको पूरा करके ही रहेंगे, दैट्स इट, डन। तो क्या होता था, हम लोग छोटे छोटे थे, मम्मी को हमें मारना होता था तो हम लोग भाग जाते थे, मम्मी पकड़ नहीं पाती थी। तो मम्मी राजेश भैया को बोलती थी कि ये इन दोनों को, मतलब मेरे को, मेरे दूसरे बड़े भाई को, दोनों को एक एक थप्पड़ जरूर मारना, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, वट एवर इट इज, है ना। तो हम लोग सुबह, ये बात सुबह की है, रात को हम लोग जब घर में सोने जा रहे होंगे तो राजेश भाई आएंगे, हम लोगों को एक एक थप्पड़ मारेंगे। तो बोले अरे क्यों मारा? बोले मम्मी ने सुबह बोला था तो अभी पड़ेगा। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि 2 बच्चे अगर आपके हैं, एक आपका भक्त है पूरी तरीके से जो आपकी सारी बात मानता है और एक आपकी बिल्कुल बात नहीं मानता, आप दोनों से इक्वल प्यार करोगे, लेकिन यू विल इंक्लाइन टू लिसन टू द पर्सन, उस बच्चे से ज्यादा सुनना पसंद करोगे जो आपकी बात मानता है, थोड़ा सा उधर जाएगा। प्यार में डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस इन द लव फॉर दैट किड, लेकिन यू आर इंक्लाइंड टू द किड्स हु आर एक्चुअली मोर डिवोटेड टू यू, है ना। तो इसका मतलब नहीं है कि आप जो डिवोटेड है उन्हीं का ध्यान रख रहे हो, दूसरों का नहीं रख रहे हो, नहीं, ये दोनों का ध्यान भी इक्वली रख रहे हो, लेकिन फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। तो भगवान के साथ भी ऐसा ही है, इट्स नॉट एन ऑक्सीमोरन, इट्स ट्रू, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ट्रूथ, है ना। Sat means absolute truth, and person who are servitors of the absolute truth are called Satvats, है ना। And the personality of Godhead who protects the pure devotee is known as protector of Satvats. ये तो सिंपल सी बात है। Now यहाँ पर sages क्या कर रहे हैं? They are actually saying blessings upon you, ओ सूद गोस्वामी। सूद गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं यार ब्लेसिंग है आपके ऊपर, क्योंकि हम जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आप हमें आंसर देने वाले हो, तो प्लीज मे लॉर्ड ब्लेस यू to give us that answer, है ना। एंजाइटी है उनके पास भगवान की कथा सुनने के लिए। Now the last bit is very very important. इसमें लिखा है the supreme personality of Godhead Krishna appeared to Devaki. इसमें नहीं लिखा है कि देवकी, ऐसा नहीं लिखा है कि देवकी ने उनको पैदा करा, ऐसा लिखा है appeared, है ना। And it is very very important, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो वूम में से, जैसे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं वूम में से निकलते हैं, वैसे ऐसे भगवान नहीं पैदा हुए थे। भगवान वसुदेव के दिल में थे, वहां से ही गॉट ट्रांसफर्ड, भक्ति फ्रॉम वन डिवोटी गॉट ट्रांसफर्ड टू द हार्ट ऑफ देवकी, फिर हार्ट ऑफ देवकी में पहले वो प्रकट हुए, फिर उनके वूम में प्रकट हुए, फिर वूम से सीधा बाहर आए, है ना। तो जो नॉर्मल, जो और जैसे हमने किसी ने देखा होगा कोई वीडियो बर्थिंग का, ऐसे बर्थ नहीं हुआ था भगवान श्री कृष्ण का कि वो ही वॉज उसमें प्लेसेंटा में लिपटे हुए हैं, फिर उनको धोना पड़ रहा है, नहीं। जब वो पैदा हुए, ही वाज, उनके पूरा का पूरा ज्वेलरी से सजे हुए थे, पूरा उनके कवच कुंडल सब कुछ था एकदम बिल्कुल, एंड इट वाज अ फ्रेग्रेंट एनवायरनमेंट, एंड उनके पूरा का पूरा लिट अप हो गया था पूरा जेल जब वो पैदा हुए थे, है ना। तो यहाँ पर मैं इनकी पढ़ रहा था अपने बुरिजन प्रभु की अनरीविंग द लोटस फीट की कमेंट्री। तो इसमें बताते हैं कि कृष्णा डज नॉट कम बाय, कृष्णा किसी और की डिजायर से, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास कोई वो नहीं है, हमारे कर्म के हिसाब से हम कहीं पर भी जहां भी पैदा हुए हैं हमारे कार्मिक रिएक्शंस के कारण पैदा हुए हैं, लेकिन भगवान के पास ऐसे कोई कार्मिक रिएक्शंस नहीं है, वो अपनी इच्छा से जहां पैदा होते हैं, वो पैदा होना चाहते हैं वहां होते हैं, और he appears, he does not do anything, he appears, पैदा नहीं होते हैं, he appears, है ना। और उनकी खुद की इच्छा से उन्होंने सारी दुनिया छोड़ के क्या चूज करा? प्रिजन, है ना, प्रिजन हाउस। उसका भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों उन्होंने एक्चुअली प्रिजन हाउस चुना, ठीक है। तो फिर so this is very important। तो इसमें क्या है कि वासुदेव is the symbol of transcendental position wherein the appearance of supreme lord takes place। वासुदेव जो थे, उनके फादर जो थे, इट्स अ ट्रांसजेंडेंशियल पोजीशन जहां पर भगवान कृष्ण टेक्स बर्थ। अब जैसे हम लोगों ने ये क्लास स्टार्ट करने से पहले वी डिड द मंत्रस, है ना, वी डिड इन्वोकेशन मंत्रस, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो इसमें क्या है, ये जो हम लोग प्रेयर्स करते हैं, जो हम लोग, उससे हम लोग भगवान को इनवाइट करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा, जो हमने बोला, वी आर इनवाइटिंग द लॉर्ड, क्योंकि Vasudev is the symbol of transcendental position wherein the appearance of Supreme Lord takes place। जब तक हम अपनी इस क्लास को सैंक्टिफाई नहीं करेंगे मंत्रों से और भगवान के आह्वान से, तब तक भगवान की प्रेजेंस नहीं होगी इसमें। और ये जो क्लास है इसका मेन एम क्या है? We can invoke the presence of Lord, है ना।
सो भगवान की प्रेजेंस के लिए हम लोगों ने ये क्लास करी है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई बार हमें लगता है कि फ्राइडे क्लास होती है तो कीर्तन चलेगा, 7 बजे कीर्तन शुरू होता है, 7:15 बजे कीर्तन बंद होता है, फिर आप 5-7 मिनट चैंटिंग चलती है, तो 7:20 पे लॉग इन करेंगे। लेकिन जो 7:20 पे लॉग इन करते हैं उनके पास ये वासुदेवा विच इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन वेयर इन अपीयरेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड टेक्स प्लेस, उनके पास नहीं आती है। ये जो कीर्तन है, ये जो भगवान का नाम है, ये जो मंत्र है, ये हमारे हार्ट को, हमारे जो सोइल है ना, जो आपने देखा होगा ना कि मिट्टी एकदम टाइट हो जाती है तो उसको कुल्हाड़ी से, सॉरी नॉट कुल्हाड़ी से, उस कुदाल से उसको खोदना पड़ता है मिट्टी को, और फिर उसमें बीज डाला जाता है। तो ये जो मंत्र होता है ये हमारे पत्थर रूपी हृदय को उस कुदाल से खोदता है ताकि उसमें ये कथा, कृष्ण कथा रूपी बीज को रोपित किया जा सके। वी कैन प्लांट दिस सीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन आवर हार्ट, एंड द ओनली वे इट इज पॉसिबल इज थ्रू कीर्तन और इन्वोकेशन प्रेयर्स एंड चैंटिंग। इसीलिए इट इज अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज जितना इंपॉर्टेंट क्लास है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीर्तन है ना। कीर्तन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचो अगर पूरी मिट्टी एकदम टाइट पत्थर जैसी है, आप उसमें कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज डाल दोगे, इट विल नॉट फ्रुक्टिफाई। आपको यू हैव टू टॉयल दैट सॉइल, यू हैव टू टॉयल दैट सॉइल, और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए वी नीड इन्वोकेशन, है ना। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आई वांट बच्चे अगर हों तो बच्चे विल गेट किड्स टू रीड द ट्रांसलेशन एंड अडल्ट्स विल रीड द purport. Can I read it? Please, please, beta, please. O Sutta Goswami, we are eager to learn about the personality of Godhead and his incarnations. Please explain to us those teachings imparted by previous masters, acharyas, for one who is uplifted both by speaking and them and by hearing them. Thank you, beta. Thank you, beta. How beautiful it is written. O Sutta Goswami, we are eager to learn about personality of Godhead and his incarnation. हमें पर्सनालिटी कृष्ण के बारे में बताओ और उन्होंने क्या किस किस अवतार में हुआ है वो भी बताओ, और उसके बाद क्या बताओ, उसके बाद बताओ कि उनकी टीचिंग्स जो है ना, जो हमारे प्रीवियस आचार्य ने बोली है वो, एंड फॉर वन इज अपलिफ्टेड बाय बोथ स्पीकिंग एंड बाय हियरिंग देम। मतलब जो ये कृष्ण कथा बोल रहा है और ये कृष्ण कथा जो सुन रहा है, हर कोई अपलिफ्ट हो जाता है इससे, है ना। सिंपल सी बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस क्लास को जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको, उनका तो प्रॉफिट है ही, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे को भी बहुत है, क्योंकि द प्यूरिफिकेशन इज फॉर बोथ, है ना। we all need purification and it's purificatory for me as well as people reading, but is in this scenario वो सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि भाई you are you will be uplifted as well as us, जो हम लोग सुनेंगे, है ना। तो प्लीज बताइए। तो अभी 2 और क्वेश्चन हो गए उनके। पहला क्वेश्चन पूछा था सूत गोस्वामी से अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, दूसरा पूछा एसेंस ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स, और तीसरा पूछा पर्पस ऑफ कृष्णा's अपीयरेंस, है ना। ठीक है, सो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हु वांट्स टू रीड द पर्पट? निशांत प्रभु और या प्रभु। The conditions for hearing the transcendental message of the absolute truth are set forth herein. The first condition is that audience must be very sincere and eager to hear, and the speaker must be in line of the disciplic succession from the recognized acharya. The transcendental message of the absolute is not understandable by those who are materially absorbed. Under the direction of a bona fide spiritual master, one becomes gradually purified. Therefore, one must be in chain of disciplic succession and learn the spiritual art of submissive hearing. In the case of Suta Goswami and the sages of Naimisharanya, all these conditions are fulfilled because Srila Suta Goswami is in the line of Srila Vyasdev, and the sages of Naimisharanya are all sincere souls who are anxious to learn the truth. Thus, the transcendental topics of Lord Sri Krishna's superhuman activities, his incarnation, his birth, appearance or disappearance, his forms, his names, and so on, are all easily understandable because
all requirements are fulfilled. Such discourses help all men on the path of spiritual realization. Hare Krishna, beautiful. What a beautifully put purport by Srila Prabhupada. अगर आप सोचो प्रभुपाद के प्रपोर्ट नहीं होते तो हमने यही पढ़ा होता कि भाई सुध गोस्वामी प्लीज बताओ भगवान ने क्या करा, उनकी इनकारनेशन ने क्या करा, क्योंकि हमें पता है जो बोलता है जो सुनता है दोनों प्योरीफाई हो जाते हैं. बट व्हाट डज दैट मीन, है ना? अब प्रभुपाद इसमें बहुत ही अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं. देयर आर कंडीशंस ऑफ हियरिंग. आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्लासेस में आपने देखा होगा सेम क्लास में एक ही क्लास आईआईटी में जो सॉरी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट या फिर आप मान लो आईआईटी, चलो आईआईटी में हर क्लास का एक टीचर होता है और वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है और देयर आर 50 पीपल सिटिंग देयर लर्निंग, लेकिन हर कोई अलग अलग चीजें सीखता है. डिपेंड क्या करता है उनकी कंडीशन फॉर हियरिंग क्या है. मतलब पर्सन हु इज रियली इंटरेस्टेड इन हियरिंग विल गेट मोर आउट ऑफ द क्लास. ठीक है, जो बहुत ज्यादा सुनने के उसमें रहता है कि जिसको बहुत ज्यादा इच्छा है कि मेरे को सुनना है, उसको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो बहुत ध्यान लगा के सुनेगा. और जितना आप ध्यान लगा के सुनोगे उतना इट इज मोर प्रोबेबल कि आपको उससे उतना ज्यादा समझ में आएगा. क्लास एक ही है, टाइम भी एक ही है, टीचर भी एक ही है, लेकिन हर उस 50 लोगों में से हर एक बंदा अलग अलग चीजें सीख रहा है ना? तो जैसे हर नॉलेज सेम ही है लेकिन उस इंफॉर्मेशन सेम है लेकिन उसका रियलाइजेशन डिफरेंट है. जैसे एक बंदे ने क्या करा, एक दारू के गिलास में एक कीड़ा डाल दिया और कीड़ा मर गया, है ना? तो उसने पूछा इससे क्या सीखा आपने? एक ने बोला कि दारू पीने से हमारा शरीर खराब हो जाता है, मर जाते हैं. और दूसरे ने क्या बोला, दारू पीने से हमारे पेट के कीड़े मर जाते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन एक ही है, वो सैंपल वो भी इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन उसका जो इन्फरेंस जो निकाला है वो डिपेंड ऑन आपकी क्या मेंटालिटी है उस वक्त. ठीक है, सो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं देयर आर फर्स्ट कंडीशन ऑफ द ऑडियंस मस्ट बी सिंसियर एंड ईगर टू हियर. अब सिंसियरिटी कहाँ से आती है? सिंसियरिटी का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंसियरिटी? व्हाट इज सिंसियरिटी? कोई भी? व्हाट इज सिंसियरिटी? कोई someone is very sincere, what does that mean? सीखना चाहता है वो चीज. इम्प्लीमेंटेशन. हाँ, सॉरी लिसन करने के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ के लिए. हाँ. और राहुल प्रभु आपने क्या बोला? मतलब सही में सीखना चाहता है कोई चीज. नहीं टू जाएगी बेटी टू कर देगा. ही सीरियस अबाउट इट. Serious about it. Sincere, yes, that's correct. He needs to be sincere. That means there is a sincerity. I want and eager to hear. मेरे को बहुत इच्छा है सुनने की. It has to be sincere. देखो, इच्छा है सुनने की, वो ऐसे भी हो सकता है कि एक बंदा होता है, सपोज उसकी इच्छा है महात्मा गांधी वाली मूवी देखने की. ठीक है, he is eager to see महात्मा गांधी की मूवी, जो है ना गांधी करके जो मूवी बनाई थी, you know, बॉलीवुड में. It's very amazing movie, won lot of prizes. So किसी को वो एक इच्छा है, ईगर है वो मूवी देखने, उसको तो ईगरनेस कहते हैं. एक होती है सिंसियर. एक बंदा उसी गांधी मूवी को देखेगा एंड हिज सिंसियरिटी इज what can I learn from it, and his sincerity is not towards that movie, his sincerity is towards the learnings, है ना? So the first condition is it must be sincere and eager to hear. ठीक है, and दूसरी कंडीशन क्या है? स्पीकर क्या होना चाहिए? has to come from disciplic succession. Otherwise, you know, कई लोग हैं, आपको पता है there are around 1800 different versions of Bhagavad Gita, main version. There are many, there are like 5,000-6,000 versions, 1800 major versions of Bhagavad Gita. उनका जो how do we, because there is only one Bhagavad Gita which is bona fide, which is Bhagavad Gita as it is, because it is coming from disciplic succession of recognized acharya. ठीक है, जिस बंदे ने सपोज जो बंदा फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, he does not know anything about the physics, उसको theory of relativity का एक स्टैंजा पढ़ा दिया जाए और उसको बोले कि you can make टिप्पणी out of this, make commentary out of this, he can do commentary, he can put really good words in there, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला. क्यों? क्योंकि he does not know the real physics. उसको उसकी फिजिक्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है. वो जो देख रहा है उसको सोच रहा है I think, you know, time is the fourth dimension of, you know, time is the fourth dimension. वो लिखे जा रहा है I think. And जब हम लोग साइंस की बात करें, it's not about I think, it is or it is not, है ना?
तो स्पीकर मस्ट बी फ्रॉम ए डिसिप्लिक सक्सेशन। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने ये बुक लिखी है भगवद गीता एज इट इज, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी उसमें अपनी भक्ति रक्षा में। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आचार्य बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम डिसिप्लिक सक्सेशन। वो हम आगे बात करेंगे क्या है वो। ब्रह्मा से आ रही है ना, कृष्णा ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा से आगे आगे आते 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 एंड देन इट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड शिला प्रभुपाद, और शिला प्रभुपाद ने उसको दिया है। तो हम लोग परपोर्ट पढ़ रहे हैं ये, इट इज कमिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आचार्य, है ना। सो that's a second thing. अगर ऐसा नहीं है, that means whatever you're doing, it is समय एव ही केवलम, it is useless waste of time, ठीक है। Then तीसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट इज नॉट अंडरस्टैंड बाय दोज हु आर मटेरियली अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। अब वो सब मैंने बताया ना, भागवत सप्ताह 7 दिन में भागवत पढ़ रहे हैं, वो आके बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंगिंग लहजे में पूरी भागवतम पढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक होती है तो वो टेंट के पीछे जाके बीड़ी सुलगा के पी रहे हैं, ठीक है ना। सो जो लोग, अब वो सुनाने वाला बीड़ी पीने वाला ही है, और जो सुनने वाले हैं उनको भी कोई मतलब नहीं है, उनको बोलो जल्दी जल्दी जितना खत्म करो। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि ये जो भगवत सप्ताह है इससे हमारी प्रॉस्पेरिटी आए, हमारे पाप कट जाए, हमारे पास बहुत पैसा आए, हमारे बेटी की अच्छी शादी हो जाए, हमारे बेटा लंदन चला जाए, अमेरिका चला जाए पढ़ने के लिए, या फिर बहुत अच्छी उसको वाइफ मिल जाए, हमारे बच्चे पोते पोती हो जाए। तो दे आर मटेरियली अब्सॉर्ब्ड। उनका भगवत सप्ताह करने का मतलब ये नहीं कि वी शुड गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। उनका मतलब क्या है, वी शुड जस्ट गेट दिस, है ना। सो फिर उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं, अंडर द डायरेक्शन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वन बिकम्स ग्रेजुअली प्योरिफाइड। अब धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया था, वो कप है उसमें इंक भरी हुई है, उसको साफ करने का, ऊपर से नल चला दो, धीरे धीरे क्या पानी जाता रहेगा, और इंक का पानी निकल के बाहर गिरता रहेगा, और धीरे धीरे जब एंड में पानी क्या बचेगा, सिर्फ प्योर पानी बचेगा उसमें। सो धीरे धीरे स्पिरिचुअल मास्टर का जो ऊपर से पानी गिरता है, तो हमारा कंटेमिनेटेड, वो जो कप है इंक वाला, हमारा कंटेमिनेटेड दिल है, उसमें जब स्पिरिचुअल मास्टर का पानी गिरता रहता है, धीरे धीरे वो किंक सारी बाहर निकल जाती है, और सिर्फ जो बचता है प्योर वाटर बचता है, ठीक है। सो वन मस्ट बी in the chain of disciplic succession and learn the spiritual art of submissive hearing. ये मैंने लास्ट उसमें ये बताया था, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर आपको कुछ सीखना है, यू हैव टू हैव सबमिसिव हियरिंग। क्वेश्चनिंग वाली हियरिंग नहीं होनी चाहिए। यू शुड चैलेंज इट, बट चैलेंज इट इन अ वे दैट यू आर रेडी टू गेट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीचर बोल रही है 1 + 1 = 2, you can ask them why miss 1 + 1 = 2, that's not a problem. लेकिन अगर वो बता रही है, then you understand it, then you have to take the answer 1 + 1 = 2 because टीचर बोल रही है ये एक एप्पल है, इसमें मैंने एक और एप्पल रखा है, इस बास्केट में आप कितने एप्पल हैं गिनो, 1 2 2 एप्पल्स हो गया। एंड देन यू से oh yes, now ये है सबमिसिव हियरिंग। दैट मीन्स यू आर रेडी टू, आपको अपने टीचर के ऊपर विश्वास है कि वो जो बोल रहे हैं सच है। मैं कई बार ना स्कूल से सीख के आता था और मम्मी को भी बोलता था, मम्मी आपको पता नहीं है हमारी टीचर सही है ना। तो उसको कहते हैं सबमिसिव हियरिंग। यू आर सबमिटिंग। सबमिसिव हियरिंग का ये मतलब नहीं है कि यू कांट क्वेश्चन इट, यू नीड टू क्वेश्चन इट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, दिस इज नॉट ए सेंटिमेंटल क्लास कि भाई मैं बोल रहा हूँ भगवान के बारे में, आप लोग सुन रहे हो, यू नो, ऐसा कुछ। इट नीड्स टू बी, यू नीड टू क्वेश्चन इट। ये अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाउ इज इट रिलेटेड टू नाउ, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। सबमिसिव हियरिंग। सबमिसिव हियरिंग का मतलब होता है, बट यू शुड बी रेडी टू टेक द आंसर। डोंट आस्क द क्वेश्चन व्हिच यू ऑलरेडी नो द आंसर टू। ऐसा नहीं पूछना। और कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताओ, फिर कुछ बताते हैं टीचर, तो कहते हैं नहीं, दैट्स नॉट व्हाट इट मींस, दिस इज मीन दिस। अगर आपको पहले से ही पता था तो क्यों पूछ रहे हो? दैट मींस यू आर नॉट डूइंग सबमिसिव हियरिंग। If you are not doing submissive hearing, you will not learn. Simple as that. In the case of Sud Goswami and Sajas Naimisharanya, all these conditions are fulfilled because Srila Sud Goswami is in the line of Srila Vyasadeva. साफ साफ बोला है, क्योंकि Srila Vyasadeva की लाइन में आ रहे हैं वो, इसीलिए वो बोनाफाइड है, ठीक है। इसीलिए जो नैमिषारण्य में sages हैं, they are very sincere soul because they want to learn from him, because they know कि speaker is bona fide and his teaching is definitely gonna be bona fide, क्योंकि वो स्पीकर bona fide है, ठीक है। So अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के टॉपिक को सुनना है, who is a superhuman, he is not human, अगर उसकी incarnation, उसकी birth सुनना है, तो we need to
we need all this requirement to be fulfilled, otherwise it will be just a waste of time. अगर हमारी conditions fulfill नहीं हो रही हैं, that means मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ सुन रहे हो, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, you know, ये this class is not to have like, you know, हम लोग यहाँ पर enjoy करने के लिए नहीं बैठे हैं. We are here to learn, you know. It's not an entertainment information delivering session. It is something that we can discuss some Krishna Katha and find out the scientific background of it and ask question accordingly, and we can see how we can relate this to today. अगर ये हर एक knowledge, how can we practically implement it for today? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, then you need to keep asking questions. All right. Who wants to read this translation? If there are any kids. Yes, please. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Can I read? Yes, please read. Yes. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by the fear personified. Beautiful. Thank you very much. What a beautiful reading. I love it. I love listening to kids' voice. It's amazing. Hare Krishna. Thank you. So who wants to read this purport? Vipin Prabhu, Mataji, whoever. Yes, Prabhuji, I'll read it. Please. Hare Krishna. Hare Krishna. Vasudev, or Lord Krishna, the absolute personality of Godhead, is the supreme controller of everything. There is no one in creation who is not afraid of the rage of the Almighty. Great asuras like Ravana, Hiranyakashipu, Kansa, and others, who were very powerful living entities, were all killed by the personality of Godhead. And the Almighty Vasudev has empowered his name with the powers of his personal self. Everything is related to him, and everything has its identity in him. It is stated herein that the name of Krishna is feared even by fear personified. This indicates that the name of Krishna is non-different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is as powerful as Lord Krishna himself. There is no difference at all. Anyone, therefore, can take advantage of the holy names of Lord Shri Krishna even in the midst of the greatest dangers. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help one obtain freedom from the hurdle of birth and death. Hare Krishna. Hare Krishna. Beautiful. This ये जो verse है, you should definitely mark it somewhere, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि what is the glory of chanting the holy name of Krishna, है ना? Living beings who are entangled in complicated meshes of birth and death can be freed immediately by unconscious chanting. ऐसा भी नहीं, consciously, unconsciously chanting. जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे तुम हरे कृष्णा लोग बहुत बेवकूफ हो यार, कुछ काम धंधा नहीं है, you know, you just सड़क पे डांस करते रहते हो, ड्रम बजाते रहते हो. तो जब ये बोलते हैं तुम हरे कृष्णा बिल्कुल बेवकूफ हो, जो उन्होंने हरे कृष्णा बोला है ना, even that gives them spiritual benefit. Even that word जो उनकी इंसल्ट के लिए बोला गया है, even that gives them spiritual benefit. Vasudeva, Lord Krishna, absolute personality of Godhead, the supreme controller of everything. Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate iti matva bhajante maam buddha bhava samanvita. भगवान बोलते हैं, I am, everything emanates from me. I am the controller of everything. There is no one, and there is no one who is not afraid of the rage of Almighty. ठीक है? असुरा, रावण, हिरण्यकशिपु, कंसा, कितने भी पावरफुल थे. कंसा, हिरण्यकशिपु ऐसा था कि उसकी एक आईब्रो अपनी लेफ्ट आईब्रो ऊपर करता था ना, तो वहां पर स्वर्ग में देवताओं की हालत टाइट हो जाती थी, सिर्फ आईब्रो ऊपर करने से. I'm not like, this is not exaggeration. I'm not exaggerating. This is exactly how powerful and cruel he was. कि जब उसको ऐसे अपनी आईब्रोज ऊपर करता था, तो इवन इन स्वर्ग लोक में जो देवता थे उनकी हालत टाइट हो जाती थी. अरे
he's gonna do something, you know. He was so powerful. ठीक है, रावण बहुत पावरफुल था, हिरण्यकशिपु, कंसा, they were very powerful. और इनको कैसे, हिरण्यकशिपु को कैसे मारा, एक बार में उसका पेट फाड़ दिया, ठीक है. कंसा को एक झापड़ मारा एंड इज गॉन, ठीक है. रावण को इट वाज एलोंगेटेड फाइट, है ना, कि धीरे 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 करके, वो पास टाइम था इसलिए ना, ये सारे पास टाइम है ऑब्वियसली, बट रावण में थोड़ा सा टाइम लगा. बट ऑल ऑफ दीज पीपल दे वर जस्ट गॉन इन 1 सेकंड. नो भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें ज्यादा, ना. सो दे आर वेरी वेरी पावरफुल and they were fearful of Krishna, ठीक है ना. So भगवान ने क्या, भगवान का एक वर्स है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, मतलब भगवान के नाम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. और भगवान ने अपनी सारी की सारी पावर्स एक उस नाम में डाल दी है. उसमें भी हम लोग एक शिक्षाष्टकम का वर्स है, शायद फर्स्ट और सेकंड है, I can't remember. नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव्यमिदृशम इहे जानी नानुराग. He has invested all his energies in this name, in his names. So actually क्या, अगर मैं बोलूं Coca-Cola, तो there is a difference between the name Coca-Cola and actual Coca-Cola, है ना. There is a difference between name, if I say water, and actual water, there is a difference. लेकिन because भगवान is supreme, he is aham sarvasya prabhavo, he is everything emanates from me, him. क्योंकि वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है, उनके नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं है. That means when I say Hare Krishna, when I say Krishna, in this word Krishna, the word Krishna and Krishna as a Bhagwan himself, there is no difference. So that means at that moment Krishna is there on my tongue, real Krishna, not unki energy, power, unka aks, ऐसा कुछ नहीं. Actual Krishna is sitting on my tongue when I say Krishna, you know. And when you are associated with the spiritual vibration, sound vibration, it has a spiritual impact on your physiology as well as spiritual, as well as your soul, you know. Everything get nourished. So you have to remember कि भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है. That's why we chant the holy name. As I said, मैं एक extra class करेंगे हम लोग just on chanting the holy name, and we'll talk about how to chant properly and things like that. Talk about क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. But this indicates that Krishna is name of Krishna is non-different from Krishna. अगर ये एक बात आप लोगों को समझ में आ जाती है आज की पूरी क्लास में, तो आज की क्लास is worth. Just one thing, there is no difference between Krishna and Krishna's name. When you chant the name of Krishna, actual Krishna Bhagwan is there in that sound vibration. He's with his full potency, not just marginal choti moti aks digya ya fir, you know, virtual reality. Aisa nahi hai. Real, he is actually there. There's no difference at all. Anyone therefore can take advantage of holy names of Lord Krishna even in the midst of greatest danger. अगर आपको, जैसे मेरे को अभी क्या होता है, कई बार मैं बहुत डर जाता हूँ, तो I say, oh, Krishna help me, and I hope कि जब मेरा अंत समय आएगा, obviously I'll be scared, hopefully that word comes out of my mouth, है ना. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help obtain freedom from the hurdle of birth and death. This is one of the most beautiful purport. You can read this again and again, take a printout of this, put it in your study, because this will give you the essence of whole Krishna consciousness. है ना, हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, how it purifies and stuff like that. It's in this. We can do more time with this, but I think it's 7:38. We'll stop and ask if there is any questions or comments. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु, इसमें अभी ये जो वर्स था, इसमें लिखा हुआ था कि immediately, मतलब even if we chant unconsciously, Lord Krishna name, yeah, the person would be freed. Yeah. That he can be freed from the birth and death, right? Immediately, right? That's correct. तो लेकिन हम तो अभी यही जानते हैं ना कि मतलब, तो अगर हमने किसी ने भी unconsciously ले लिया, तो we should have been freed by now, right? No, you're good point. You mean, okay, so what you're saying is the transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help obtain freedom from the hurdle of birth and death. Yes, that is true, but there are some there's conditions apply hota na. Conditions ये है कि you need to be non-envious
और आपने निरपराध भाव से भगवान का नाम लिया हो। Now, what is the meaning of निरपराध? निरपराध का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने अजामिल की कहानी सुनी होगी। अजामिल was a very pious ब्राह्मण। फिर उसने कुछ गलत चीजें होती हुई देख ली वहां पर जंगल में, and then he got really bewildered। फिर उसने ना गलत लोगों का संग करना शुरू किया, got married to someone like with loose character, and he was very पूरे हर तरह के गलत काम शुरू कर दिया। And then but उसने एक काम करा, अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। You know, for those people who know, my son's name is Narayan as well, इसलिए रखा था। मेरे भी कर्म वैसे ही हैं। Anyway, so नारायण, क्योंकि और क्या हुआ, when he was dying, उसको जब यमदूत लेने आए, he was so scared, क्योंकि जब बॉडी को सोल से अलग करा जाता है इतना पेनफुल होता है। इट इज लाइक 40,000 बिच्छू एक साथ खा रहे हैं, 40,000, है ना। तो वो उसने जोर से बोला नारायण, अपने बेटे को बुलाया, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बुला, अपने बेटे को बुला रहा था। लेकिन क्या हुआ, वो लोग आ गए, क्या बोलते हैं, यमदूत आए, लेकिन यमदूत ने बोला इसने तो नारायण का नाम लिया, इसको तो हम हाथ ही नहीं लगा सकते। फिर विष्णु पार्षद, विष्णुदूत आए, विष्णुदूत ने बोला, वैसे बहुत सारी बहस हुई, बट इट्स अ बिग पास टाइम, बट अल्टीमेटली विष्णुदूत ने विष्णु को बोला कि भगवान, इन्होंने आपका नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया था। तो भगवान ने बोला नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट, डजंट मैटर किस ले लिया हो, एट द मोमेंट इसने भगवान का नाम लिया है, टेक हिम, ठीक है। तो फिर उन्होंने यमदूत को उसको हाथ नहीं लगाने दिया। एनीवे he did bhakti and everything and he came back. Now जब हम लोग नाम लेते हैं, एक बार भी नाम लेते हैं ना, इट कैन एक्चुअली लिबरेट अस कंप्लीटली। लेकिन वो जो एक नाम है, इट नीड्स टू बी शुद्ध नाम। तो अभी जो हम लोग नाम ले रहे हैं उसको कहते हैं नाम अपराध। अभी जो हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम बोलते हैं, इसमें अगर हम लोग कुछ और सोच रहे हैं, हमारा अटेंशन नहीं है मंत्र के ऊपर, तो इट्स अपराध, इट्स नाम अपराध, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जब अटेंशन से लेने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं नाम आभास। तो थोड़ा थोड़ा ना हम लोगों को बहुत थोड़ा सा याद रहता है कि एक मंत्र में एक बार याद आ गया, है ना। और उस वक्त हमारे मन में कोई गलत भावना नहीं है, किसी के बारे में एनवियस नहीं है हम लोग, हमने अपने बॉस की बुराई नहीं करी है मन में, है ना, अपने हस्बैंड को 2 गाली नहीं दी है मन में, है ना, अपनी वाइफ को कुछ छोटे से नहीं बोला है मन में, है ना, कुछ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन यू से भगवान का नाम, उसको कहते हैं नामाभास। देन व्हेन यू कीप डूइंग इट, देन यू गेट टू अ स्टेज वेयर इट्स कॉल्ड शुद्ध नाम। then you are fully, then you will feel the taste. When you say Hare Krishna Mahamantra, you will, आपको रोकने वाला रोक नहीं पाएगा। He won't be able to stop you from chanting. इतना रस आने लग जाएगा उसमें। लेकिन वो रस कब आता है, जब हम शुद्ध नाम लेते हैं। तो सचिन प्रभु, you are absolutely right कि एक बार करने से, एक बार भी ढंग से नाम लेने से जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि that will be your last birth. That means that will be starting of your pure bhakti. अगर एक बार भी आप ढंग से नाम ले लेते हैं, तो that will start your pure bhakti. And धीरे धीरे करके we need to still अपना ना, we need to still अपना जो चेतो दर्पणम अर्जनम है, इसको साफ करना पड़ेगा। मन के दर्पण को हमें धीरे धीरे साफ करना ही पड़ेगा। And then slowly and gradually you'll get to that stage. ठीक है प्रभु? जी ओके। आई डोंट नो किसने पहले हाथ उठाया था, प्रियंका माता जी या राहुल प्रभु? आई डोंट नो हु रेज्ड देयर हैंड्स फर्स्ट। हुएवर। प्रभु मेरा वैसे क्वेश्चन नहीं है, मेरा इसी पॉइंट पे था। हाँ प्लीज बोलिए। मैंने कई लेक्चरों में सुना है कि इसमें बोलते हैं ना कि भगवान का नाम एक बार भी ले लिया तो आपका वैकुंठ धाम जाना तो पक्का है। बट ये कहीं नहीं लिखा है कि इसी जन्म में जाना पक्का है। That's correct. You will take me to take so many births based on what your past karma. Yes, that's correct. मतलब सीढ़ी आपने चढ़नी शुरू कर दी है, लेकिन मंजिल कितनी दूर है वो भी नहीं पता। Yes. That means you got into the train, है ना? Got into the train and then it will take you to destination, but you still have to travel. ऐसा नहीं कि फुट्स कराया तो उतर जाओ, है ना? कंडीशन सप्लाई हर जगह होती है मतलब। प्रभु अभी देखो, हम लोगों ने वर्ड्स पढ़ा था ना, जिसमें भाई आप भगवान का नाम सुन के सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन अप्लाई थी। आप सुन रहे हो, आपका मन कैसा है ना, कंडीशन हर जगह प्रभु। ओके जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु मेरा क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही अजीब सा हो। पूछिए माता जी। आप म्यूट हो गए माता जी, आपका। हाँ
आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ हाँ प्रभु, तो कृष्णा का एक नाम है वासुदेव, हाँ है ना? और मुझे पहले ये पता था कि उनको हम वासुदेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पिता, मतलब इस बर्थ यहाँ पे, मतलब जो पास्ट टाइम हुआ उसमें उनके पिता का नाम वसुदेव था, तो उससे उनका नेम वासुदेव हुआ। that is लेकिन correct. मुझे कुछ टाइम पहले ये रियलाइज हुआ कि ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उससे बहुत पहले से है ये मंत्र, प्रिस्क्राइब्ड मंत्र। तो That's a very good point. और मैंने ये भी जो वो होता है ना, जो 1000 नेम्स होते हैं विष्णु के, सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम, उसमें भी वासुदेवा नाम है। हाँ हाँ हाँ, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? और मतलब ये क्या बाई चांस ऐसा हुआ कि उनके फादर बाद में मतलब यहाँ पे वसुदेव हो गए, या मतलब ये कैसे लिंक होती है चीज, मुझे ये डाउट है। नहीं नहीं माता जी, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट। मैंने कुछ सुना था, लेकिन वो था कि ये जो पास्ट टाइम है वासुदेव, और ये जो अभी हम लोगों ने कृष्ण भगवान आए थे और उन्होंने लीला करी थी, ये एक्चुअली क्या है, इट्स एन ऑन गोइंग पास्ट टाइम, है ना। ये कोई अभी नहीं हुआ है, हमारे 5000 साल पहले नहीं हुआ है ये। इट इज एन ऑन गोइंग पास्ट टाइम। ये हजारों करोड़ अरब नहीं, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस में अलग अलग तरीके से लीला चल रही है, और हमारे ही इस पृथ्वी पे अनलिमिटेड युगों से ये चल रहा है ना। निशांत प्रभु, आपको याद है क्या बताया गया था अपन को इसके बारे में? प्रभु ये गोलोक वृंदावन में तो अभी भी चल ही रहा है ना। तो जो हाँ एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये एक्चुअली उनके पेरेंट्स हैं अभी भी एट प्रेजेंट ऑल्सो। हाँ, तो ये क्या प्रियंका माता जी, ये अभी 5000 साल पहले वाली बात नहीं है, ये हमेशा से चल रही है। ये जो पास्ट टाइम है हमेशा से चल रहा है, और ये करंटली भी चल रहा है। उसका एक रिफ्लेक्शन एक यहाँ पर था पृथ्वी पे, जो अभी 5000 साल पहले भगवान ने वो करा था, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, जहां से वो आया है, जिसका वो रिफ्लेक्शन है, ये वो अभी भी वहां पर लीला चल रही है। तो ये जो वासुदेव हैं, ये इनके जो पेरेंट्स हैं, ये इटर्निटी से ही है। हम लोग उसको ना टाइम के उसमें बाउंड ही नहीं कर सकते, जहां तक यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तो। ओके प्रभु, तो दैट मीन्स कि जो वसुदेव हैं वो एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वात्सल्य भाव के साथ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। यस डेफिनेटली। एंड वहीं, और वो इटर्नली वहां पर है। ऐसा नहीं है कि एक पास टाइम करने के बाद जैसे भगवान चले गए कहीं और एक खत्म हो गया पास टाइम, ऐसा नहीं है। इट इज गोइंग ऑन गोइंग, इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। इज ऑलरेडी ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज बीन देयर, एंड ही विल ऑलवेज स्टे देयर। ओके, ऑलराइट। मितुल प्रभु, मुझे भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है। हाँ पूछिए माता जी प्लीज। प्रभु, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही सब लीला होती है, तो क्या वहाँ पे भी ये कंस वगैरह और सबकी भी लीला हुई होगी कि कान्हा जी वहाँ पे भी जेल में पैदा हुए होंगे और इस तरह नंद बाबा के घर गए होंगे? कुछ डिटेल्स चेंज हो सकती है माता जी, लेकिन मेजॉरिटी सेम टू सेम रहता है। लाइक जैसे वहां पर इतने सारे जो वो हुए थे, कंस ने बहुत सारे लोग उनको मारा था ना, कृष्ण भगवान के भाई बहनों को, इन लोगों को, सब लोगों को। वो सारी डिटेल भले ही चेंज हो सकती है, लेकिन जो मेन थीम है वो सेम ही चलती है पूरे हर उसमें। ओके, और प्रभु जी जो कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जैसे जो कृष्णा जी ने पूतना को मारा था, तो उनको मतलब मदर का वो मिला था डेजिग्नेशन वहाँ पे, तो मतलब उनकी मैया देवकी तो होंगी ही, तो वो और मदर्स की तरह उनको पूतना को भी वो मिला होगा ना? नहीं, हाँ, पूतना जो थी वो धात्री थी। कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम विंध्याचलापाय यदत्प्रसादि देवे गतिं धातृचितां ततोन्यम किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो धात्री का मतलब होता है नर्स। धात्री का मतलब माँ नहीं होता है, लेकिन नर्स इज वेरी क्लोज टू माँ। तो माँ तो उनकी है, यशोदा माँ, देवकी माँ है ना, लेकिन ये जो पूतना है ये धात्री एज ए नर्स चली गई थी, नर्सिंग नर्स। शी इज नॉट एग्जैक्टली लाइक देवकी एंड यशोदा, बट शी इज लाइक ए नर्स। धात्री मतलब नर्स है ना। ओके,
और मिथुन प्रभु। प्रभु जी, आपने ये इसके आगे जैसे बोला कि ये लीला अभी भी चल रही है, कहीं और चल रही है, डज इट मीन दूसरे यूनिवर्स में चल रही है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रही है, कहाँ पे चल रही है, यानी इटर्नल है? इटर्नल है। ये बिल्कुल क्वेश्चन बहुत अच्छा है प्रभु। ये अभी दूसरे यूनिवर्स में चल रही हैं, बिकॉज देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस, वो कहीं ना कहीं हमेशा चलती रहती है। एक ही साथ 10-10, 20-20 जगह भी चलती है, 100-100, 200-200 जगह भी चलती है। और ये इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चल रही है। तो हम लोग जब जाएंगे वहां पर, अगर भगवान ने बुलाया, श्रील प्रभुपाद की मर्जी रही, so we will be part of these pastimes, where agar if I become a grass in that Golok Vrindavan, Krishna will step on me, and when he steps on me, he knows that I am here. He will have a very good relationship with me. Ye Brijesh, I'm putting my feet on you, how are you, is everything okay, did I step on you too harsh, all those kind of things. He will have proper reciprocation. But whatever we become, it will be eternity. We will be in that pastime for eternity. And then if he qualify, तो फिर वो जहां पर भी pastime करने जाएंगे, when he goes to do pastime, then we will go with him. Like ये Sudama, Sridham, ये सब, these people, they come with Krishna as because they are very intimate associates. जो intimate associates सब एक साथ आते हैं, है ना? So yes, there are, अभी भी चल रही है, बहुत सारी जगह चल रही है, and it is a ongoing thing, है ना? And it's very hard to compliment. प्रभु जी, उस पे एक ऐड करूं, मैंने कहीं किसी के वो सुना था कि लाइक जो ऐसे गोलोक वृंदावन होते हैं, उसमें पर्टिकुलर लीलाएं कंटिन्यूअस वो भगवान की अंतरंग शक्ति वाली जो होती है वो वहां पर चली रहती है। फिर यहाँ पे जब वर्ल्ड में कुछ होता है तो वो अपने भक्तों के साथ वो दूसरों को दिखाने और समझाने के लिए लाइक आते हैं वहां से। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला आपने। और वो ये पास टाइम सिर्फ यहाँ पर इसलिए करा गया ताकि हम जैसे लोग जो इटर्नली, जिसे कहते हैं नित्य बद्ध, हमेशा से बंधे हुए हैं इस जन्म मरण के साइकिल से, हम जैसे लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्शन हो कि यार स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा है, भगवान ऐसे हैं, भगवान की ये कैरेक्टरिस्टिक है, और हमें एक थोड़ा सा टेस्ट है कि यार हमें वहीं जाना है जहाँ पर ये ओरिजिनली चल रही है। तो ये भगवान यहाँ पर आके हमें एक ट्रेलर देते हैं ताकि हम पूरी मूवी देखने जा सकें वापस। तो थैंक यू। ओके, तो फिर एक और क्वेश्चन। तो जैसे आपने बोला है कि सुदामा जैसे वो अपने भक्तों को लेकर ऐसे दुनिया में आते, ठीक है, तो जैसे सुदामा पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने काफी सारा दुख भोगा था, तो फिर एक बार वो जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए तो फिर उनको दुख क्यों भोगना पड़ा फिर वापस? नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दुख नहीं होता एक्चुअली, देयर इज नो दुख इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना? नो एंजाइटी होती है, लेकिन वो भी एंजाइटी भी ऐसी वाली हमारी जैसे मटेरियल एंजाइटी नहीं होती है, थोड़ी स्पिरिचुअल एंजाइटी होती है। तभी तो उसको जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स होते हैं उनको कहते हैं बैकुंठा। कुंठा का मतलब होता है एंजाइटी, बैकुंठा का मतलब होता है नो एंजाइटी। सो जैसे सुदामा है, सुदामा यहाँ पर उन्होंने बहुत दुख झेला और ये सब, है ना? ये सेम पास टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सुदामा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम एंड ही इज ओके, ही इज लिविंग हैप्पीली। ऐसा नहीं कि उनके पास महल वहल भी होंगे वहां पर, जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन ही इज कंप्लीटली हैप्पी। जैसे यहाँ पर जब सुदामा थे, सो ही वाज एवरी डे, उसको ये भी नहीं पता था कि आज सुबह का खाना बच्चों को दे पाऊंगा, दोपहर का खाना दे पाऊंगा। ही वाज लिविंग वेरी पुअरली, है ना? और और वो बिल्कुल डिटैच था, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि वो पूरे दिन एंजाइटी में था। दुख इसलिए उसको भोगना पड़ा क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना उसको कि वो दुख भोग रहा है, ही वाज नॉट। आपको पता है सुदामा को इतना दुख जो उसने भोगा, उसका रीजन ये था कि ही वाज अटैच्ड, ही वाज सो प्राउड ऑफ हिज रिनंसिएशन, ही वाज वेरी प्राउड। उसको अपनी गरीबी पे बहुत वो हो गया था, घमंड हो गया था। ही वाज सो प्राउड टू बी पुअर। तो भगवान ने क्या करा, उसको इतना भर भर के दिया। वो घर आया तो उसका घर सोने का बना हुआ था, है ना? ही हैड पैलेस, नॉट जस्ट कुटिया। वो किस लिए? क्योंकि भगवान वांटेड टू ब्रेक हिज। अब हम लोग ये मत सोचना कि चलो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी अपनी गरीब बन जाता हूँ, घमंड करता हूँ, मुझे भी सोने का महल मिलेगा। नहीं, एक्चुअली क्या है, सुदामा जो थे वो लोग, कई लोग ये लोग पास टाइम करते हैं फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ना
भगवान को सब चीज पसंद है, प्राउड पसंद नहीं है ना, दैट्स इट. सो सुदामा इज नॉट ए प्राउड पर्सन. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही इज नॉट ए प्राउड पर्सन, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में व्हेन ही केम ना, he showed a characteristic of being proud of his for his उसका जो financial situation थी, and to overcome that भगवान ने उनको वो दिया, महल दे दिया. तो भगवान ये बताना चाह रहे थे कि वो भले ही मेरा फ्रेंड हो, लेकिन अगर उसमें प्राइड है, I will take care of that pride, है ना. So ये सब हम लोगों के समझने के लिए है. But Sudama, when he is in the spiritual world, he is not poor. He is not उसको ऐसा नहीं है कि खाने के वांदे पड़ रहे हैं ना, बच्चों के लिए खाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं. They're actually his eternal mates. They're actually blissful. Okay. No, मेरा क्वेश्चन लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ. मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि एक बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए, फिर अगर भगवान को कुछ लीलाएं दिखानी होती है तो कई जगह पे, यानी फॉर एग्जांपल ले लो को पृथ्वी पर भगवान को कुछ लीला दिखानी है तो वो अपने भक्तों के साथ आते हैं. तो वो वैकुंठ से सुदामा को लेकर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर सुदामा को वो सारा कुछ झेलना पड़ा. वो उस हाँ, एक्चुअली क्या है, भक्त जो होते हैं प्रभु, दे आर वेरी वेरी हैप्पी टू गो थ्रू एनी प्रॉब्लम इफ इट्स मेकिंग कृष्णा हैप्पी. और कृष्णा की मर्जी है तो दे विल डू एनीथिंग. जैसे गोपियां थी, दे वर रेडी, अपने पाँव की मिट्टी देने को तैयार थी कि भगवान के लगा दो. फिर उन्होंने बोला तुम नर्क जाओगे, बोले नर्क हमें इटर्निटी तक रख लो. नर्क में अगर 1 मिनट के लिए भगवान का सिर चला जाता है, सिर दर्द, हम लोग इटर्निटी तक रहने के लिए तैयार हैं. तो ये जो डिवोटीज हैं, दे आर रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ. और ये जो प्रॉब्लम सुदामा ने झेली, दैट्स नथिंग, लाइक यू नो, भक्तों के लिए इट्स नथिंग, इट हैज नो मीनिंग. They are happy to take care of any anxiety for भगवान. Got it. हाँ, वो सही बात है. हाँ, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि 1.13 में जैसे बताया कि आपने बोला कि 1800 कुछ भगवत गीता के भगवतम के वर्जन्स है, ठीक है. तो सब बोलेंगे ना कि नहीं मेरा वाला ही सही है, मेरा वाला ही सही है. जैसे सैमसंग वाला बोलेगा मेरा फोन ही सही, बाकी सारे फोन गलत है. तो फिर वो कैसे जस्टिफाई होगा कि नहीं इसका ही सही है? आपने बोला कि आचार्य ने बोला है कि बोनाफाइड किया है, तो फिर वो आचार्य लोग कौन है? फिर ये वो जो एंसेस्टर है, किसी से चले आते रहे, कैसे काम कर रहा है? ओके, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. एक्चुअली क्या डिसिप्लिक सक्सेशन जो मैं बता रहा था, पहली चीज तो यह है कि जैसे सैमसंग, मटेरियल एग्जांपल ले लेते हैं. सैमसंग, अगर आपको पता है कि आपके पास एक फोन है, हाउ डू यू नो कि वो फोन काम करता है? व्हाट डू यू डू? चेक द फंक्शंस, जो भी फैसिलिटी चाहिए वो है नहीं है, और क्या चेक करते हैं? बैटरीज वगैरह सही चल रही है, लाइफ क्या है? नहीं, उससे पहले जैसे आपको यूज नहीं, आपने बस डब्बा देखा, आपका डब्बा है पैक्ड, आपको दुकान पे गए हो, आपको चूज करना है सैमसंग चूज करूं कि एप्पल चूज करूं, तो आप क्या करोगे? रिसर्च में देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी है, लेकिन रिसर्च करोगे ना आप. यू गो ऑन मे बी गूगल कि भाई रिव्यूज चेक करता हूँ, ठीक है. तो नाउ द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, टेक द रिव्यूज. अब रिव्यूज में आपने रिव्यूज पढ़ रहे हो तो उसमें लिखा है कि एक 4 साल का बच्चा, उसने सपोज सारे रिव्यूज में उन बंदों की एज लिखी हुई है, ठीक है. सपोज वो सारे के सारे रिव्यूज हैं जिसमें बच्चों की एज लिखी है 4 साल, 3 साल, 2 साल. आप उनके रिव्यूज को पढ़ के वुड यू बाय दैट फोन? नो, क्योंकि यू नीड समवन लाइक यू नो इज लाइक, फिर उसमें लिखा, सपोज दूसरा लेवल आ गया कि भाई उनमें लिखा है कि आई एम 34 year old, आई हैव बीन यूजिंग दिस फोन फॉर 5 years, these are the benefits that I have, I work for an IT company and I work for a software, I'm a software engineer. And then suddenly you realize ये बंदा qualified है, he knows how to use the thing, he is giving us the review, that means this phone is good. And ऐसे करके खूब सारे आप देखने पड़ेंगे ना. Same with disciplic succession. Now if you want to know कि suppose मैं आज बैठ के भगवत गीता पे टिप्पणी लिख देता हूँ और अपनी बुक पब्लिश कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास $1 million पड़ा है, I'm telling you lots of people will buy it. I have no idea कि मैंने क्या लिखा है उसमें, ठीक है. कोई भी वर्ड जगलरी करके लिख दिया, but people will buy it क्योंकि उनको नई चीज दिखी, they will buy it. And क्या होगा कि the only way you should pick up a book is, देखो कि भाई ये ब्रजेश की क्वालिफिकेशन क्या है. ये चौथी फेल है, ठीक है, चलो चौथी फेल, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चौथी फेल है, लेकिन ये
स्पिरिचुअलिटी के नाम का एस भी नहीं पता है इसको, है ना, दारू पी के गटर में पड़ा रहता है ना, और वो भगवत गीता पे टिप्पणी लिख रहा है और उसमें खुद में कोई कैरेक्टर नहीं है, देन हाउ वुड यू, तो आपको समझ में लगेगा कि नहीं यार ये बंदा तो स्पिरिचुअल है ही नहीं, इसको क्या करेंगे। तो इसी तरीके से यू डू रिसर्च, और रिसर्च कैसे, यू नीड टू आस्क पीपल हु आर इन स्पिरिचुअलिटी। मटेरियल लाइफ में बहुत ज्यादा घुसे पड़े हैं, वो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में इतना अच्छे से आपको नहीं बता पाएंगे। सो यू नीड टू फाइंड पीपल हु आर स्पिरिचुअली वेरी एनलाइटेंड, फिर उनसे पूछो, फिर उनको पूछो, फिर ऐसे ऐसे करके व्हेन यू डू रिसर्च यू विल फाइंड देयर आर ओनली 4 बोनाफाइड लीनिएजेस जिनकी टिप्पणी यू कैन रीड एंड दे आर बोनाफाइड एंड दे विल मेक सेंस। और उसके बारे में हम विल डू वन होल क्लास इन प्रोबब्ली अ मंथ, सिर्फ एक क्लास डिसिप्लिक सक्सेशन में जाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग वी हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन, वरना ऐसा नहीं है। It is there, it's documented. We'll talk about actual lineage, ब्रह्मा से लगा के अभी तक कौन कौन है lineage में आए, we will talk about all of them. ठीक है? Okay, so it means जो चैतन्य महाप्रभु आए थे उसके वहां से चलते आ रही पूरी हायरार्की चलती आ रही है, जो है उसमें से भक्ति, हाँ, तो उसमें से ये प्रभुपाद है वो वहां से बिलोंग्स करते हैं। Exactly right. तो इसमें क्या है, वो वाली सक्सेशन नहीं है कि डिसिप्लिक सक्सेशन का मतलब ये नहीं कि भाई मेरा बेटा होगा तो उसका बेटा ऐसे नहीं। डिसिप्लिक सक्सेशन का मतलब होता है अगर मैं हूं, मेरे अगर 10 डिसाइपल हैं, वो सारे के सारे मेरी डिसिप्लिक सक्सेशन में है, लेकिन उसमें से एक जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रीचर होगा एंड देन ही विल टेक इट अवे। सो वो जो लीनिएज आ रही है वो वहीं से आ रही है पूरी की पूरी, एक का डिसाइपल दूसरे का डिसाइपल ऐसे। इट्स नॉट ए बर्थ, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू बर्थ कि भाई उसके लीनिएज में नहीं है, बस डिसिप्लिक लीनिएज में होना चाहिए, है ना। ओके, अलका जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पूछना था, ये जो 4 हमारे जो युग है, तो हर यूनिवर्स में भी यही 4 युग होते हैं, जैसे कि द्वापर युग हो गया, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग? ये सिर्फ हमारे जो है ना ये भूमंडल इधर पे ही है, बाकी सारे में डिफरेंट युगास हैं, अलग अलग। ब्रह्मा जैसे हमारे जो युग हैं उससे ब्रह्मा की एज डिसाइड होती है ना, ब्रह्मा लिव्स फॉर 1000 ईयर्स, ठीक है। 1000 ईयर्स में कितने कल्पास निकल जाते हैं, अराउंड 4,300,000 4,000 समथिंग साइकिल्स ऑफ वो निकल जाता है। नाउ जो ब्रह्मा दूसरे यूनिवर्सेस में है उनकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ी है, तो उसमें कैसे डिफरेंट कल्पास का टाइम वर्क्स डिफरेंटली देयर, वहाँ के युगा डिफरेंट होते हैं, वहाँ की जो एक्चुअल पास टाइम्स हैं वो भी उसमें भी काफी सारे होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना। तो ब्रह्मा के जो 100 साल होते हैं वो हमारे बहुत बहुत सारे साल होते हैं। तो इसीलिए जो दूसरे यूनिवर्सेस हैं उसमें जैसे हमारे 4 हेड वाला ब्रह्मा है, बाकी ब्रह्मा 100,000 10,000 हेड वाले भी होते हैं। तो जितना बड़ा यूनिवर्स होता है उतने ही ज्यादा हेड होते हैं ब्रह्मा के। हमारा जो ब्रह्मा है इट्स द स्मॉलेस्ट, उसके 4 हेड हैं, दैट्स द स्मॉलेस्ट। हमारा जो यूनिवर्स है इट्स स्मॉलेस्ट यूनिवर्स, इसलिए हमारे पास सिर्फ 4 युग हैं। अब बाकी जगह कितने युग होते हैं उसकी नॉलेज मेरे को नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वहां पर इट्स अ डिफरेंट लाइफ साइकिल, डिफरेंट पास टाइम्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम, पूरा डिफरेंट टाइम फ्रेम है। बट यस, जरूरी नहीं कि उनके पास सेम ये सतयुग, त्रेता युग और कलयुग ये सब आया उसमें। क्योंकि आपने जैसे बोला था कि जो पास टाइम कृष्णा ने यहाँ पे किया था तो वहां पे भी चल रहे हैं, तो मुझे यही लगा कि वहां पे क्या दूसरा युग चल रहा है या फिर सेम कलयुग ही है, तो इसीलिए डाउट आया था। नहीं, डिफरेंट युगा भी डिफरेंट है वहां पर, और भगवान और इतने सारे यूनिवर्सेस है ना कि भगवान की एक ही टाइम में मिलियंस ऑफ जगह लीलाएं चलती हैं, फिर वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह चली जाती हैं। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था मेरा, तो ये तो काफी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, बट आज आपने जो अजामिल की कहानी का जो निकाला तो उसी के बेस पे था मेरा। तो आपको ये भी कथा पता है ना कि ये भरत महाराज जो कि हिरण बन गए थे अगले जन्म में, तो ये अब जैसे ये 2 कहानियों को अगर हम रख के साइड में रख के अगर देखें तो एक में अजामिल तो जैसे उन्होंने गलत राह पकड़ ली थी और फिर लास्ट में उन्हें मुक्ति मिल गई कि भाई वो नारायण का नाम ले रहे थे चाहे जाने या अनजाने, ठीक है ना। और दूसरी वाली कहानी में वो भी भक्त थे, वो भी उन्होंने काफी तपस्या की, बट लास्ट मिनट पे वो हिरण से ज्यादा मोह हो गया था, तो फिर उनका जन्म हिरण के साथ हिरण का हो गया था। तो इसमें
मुझे ये समझ में आ रहा है कि लास्ट मिनट पे हम जो नाम लेते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, डजंट मैटर व्हाट यू डू प्रीवियसली। तो वो मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी उस बेसिस पे ना। एक्चुअली क्या है कि लास्ट समय में अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेव, अंत काल में हम भगवान का नाम लेंगे और उससे पहले हमने भगवान का नाम नहीं लिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको बताता हूँ, एंड थिंक अबाउट दिस। सपोज एक कछुआ है, वो समुद्र में रहता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। आपने शास्त्रों में लिखा है एक कछुआ नीचे से पैसिफिक ओशन के बॉटम में से ऊपर आ रहा है, ठीक है, और वो जब पानी के ऊपर सिर निकालेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वहां पर जहां पर वो सिर निकाल रहा है वहां पर एक लकड़ी का फट्टा पड़ा होगा और उसमें एक छेद होगा उतना ही बड़ा जितने में से उसका मुंह निकल सके, है ना। अगर ये जो प्रोबेबिलिटी है कि एक पूरे समुद्र में से नीचे से कछुआ आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जब वो पानी से बाहर निकले तो वो एग्जैक्टली उसके सिर के बराबर उसमें छेद हो, पेड़ का तना, और उसमें निकले। इट इज वेरी वेरी लेस, नियरली जीरो। उतनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम पूरी जिंदगी नाम ना लें और एंड में नाम ले लें और भगवान के पास चले जाएं, ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जो अजामिल था, ही डिड अ रॉन्ग थिंग बहुत, लेकिन वो until he was like 20-25 he was a brahmachari. He was actually a very very strong devotee, बहुत strong devotee था, and then he fell down, ठीक है। so ऐसा नहीं कि उसने कुछ भी नहीं करा पूरी जिंदगी में, कोई भक्ति नहीं करी। so when he उसके बाद भी when he said नारायण at the time of death, ऐसा नहीं कि भगवान ने उसको बोला एक काम कर, चल हो गया तेरा काम, चल वैकुंठा, तेरा सारे कर्म माफ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। he has to take birth again, he has to do full austerity, pura, he became a massive devotee because he remembered his birth, he became a devotee, and then he did lot of bhakti, सारे karmic reaction खत्म हो गए, and then he went back to God. Same with Bharat Maharaj, he was in a bhava platform, very high platform. When he passed away, तब हिरण जब बने, वो हिरण के जब बने तब भी उनको अपना पूरा पिछला याद था, and that's why वो हिरण बन के भी वो अपने परिवार के साथ नहीं रहे, वो आश्रम में चले गए जहाँ पर वो लोग तपस्या करते थे, ताकि उन योगियों के साथ में रहें ना, सन्यासियों के साथ में रहें, ताकि वो अपनी भक्ति बना के रखें। और नेक्स्ट बर्थ में जब वो जड़ भरत बने तब उन्होंने कोई अपना सिर्फ किसी से कोई मतलब नहीं रखा, सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान दिया, एंड देन ही वेंट बैक होम बैक टू गॉड। तो इसमें कुछ चीजें सीखने की ये है कि पहली चीज ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग अपने एटीट्यूड, जैसे अभी जो जलजला आया था, अर्थक्वेक आया था, किसके मुंह से कृष्णा निकला? अगर आपके मुंह से उस वक्त कृष्णा निकला है, दैट मीन्स ठीक है, योर भक्ति इज गेटिंग देयर। अगर उस वक्त आप ये सोच रहे हैं क्या हो रहा है, अरे घर गिरने वाला है, भागना पड़ेगा बाहर, इफ यू थिंक लाइक दैट मीन्स लॉन्ग वे टू गो। क्योंकि एक 10 सेकंड की स्प्रिंट रेस ओलंपिक में जीतने के लिए लोगों को 15 साल मेहनत करनी पड़ती है। 10 सेकंड की ग्लोरी, 15 साल की मेहनत। अगर कोई बोले कि नहीं मेरे को नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ मेडल लेना है, उस दिन मैं भाग लूंगा जितना भाग सकता हूँ, तो नहीं होगा वो। इसीलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भक्ति इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप, है ना, धीरे 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 धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड वी शुड नेवर बी इन अ हरी। हम लोग अपने घर वालों को भी ध्यान रखने की, किसी को नहीं फोर्स करना किसी चीज के लिए। भक्ति इज नॉट मेंट टू बी पुश्ड ऑन पीपल। माला नहीं करी तुमने अभी तक, तो प्रभु क्या करते हो आप, माला टाइम पे करा करो, क्यों नहीं करते माला आप टाइम पे? अगर आप इस तरह की पुशिंग करने लग जाओगे अपने एक दूसरे को, तो क्या होगा, इट बिकम्स अ वेरी बिग हिंड्रेंस कि यार ये भक्ति इतनी परेशानी है, मेरे हस्बैंड ने मुझे परेशान कर दिया, मेरी वाइफ ने मुझे परेशान कर दिया, माला करो। सो वी हैव टू रिमेंबर कि इट्स अ रेस जिसमें हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है डेली, एंड देन अंत काले चमामेव, अंत में तभी हमें भगवान का स्मरण आएगा, व्हेन वी हैव डन दिस वर्क, बैकग्राउंड वर्क, 15 साल की मेहनत। सो खूब सारे पॉइंट्स थे इसमें। अलका जी, डज इट मेक सेंस? तो या इट डज, एंड इस पे थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए थी प्रभु जी, कि जैसे पाप और जो भी हम कर्म कर रहे हैं, या तो वो पाप में आता है, या तो पुण्य में, या तो फिर भक्ति में, ये 3 में होता है ना। तो अगर जैसे कि हम पाप और पुण्य कर रहे हैं और वो हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है, और अगर हमने भक्ति की और लास्ट मिनट पे हमने नारायण का नाम ले लिया,
तो ये हमारे जो पाप और पुण्य जो भी है वो खत्म हो जाते हैं, या फिर ये कैरी फॉरवर्ड होके हमें दूसरा जन्म, अब जैसे अजामिल का आपने बताया दूसरा जन्म, मुझे ये नहीं पता था कि उनका सेकंड फिर से जन्म हुआ था और उन्होंने भक्ति में फिर से शुरू किया था। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे जो भी पाप और पुण्य के कर्म है हमें भोगना या भुगतना तो है ही है एट एनी कॉस्ट, है ना। लेकिन फिर भी देर आर मेंशन इन आवर स्क्रिप्चर्स कि जब हम लोग भक्ति करते हैं हमारे जो कर्म होते हैं ना दे स्टार्ट गेटिंग क्लीन्ड अप, है ना। दैट इज मेंशन्ड देयर एज वेल। सो यू माइट हैव टू कम बैक एंड लिव अनदर लाइफ, बट दैट लाइफ विल बी अ लाइफ ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्योंकि यू ऑलरेडी डन, आपके पुराने कर्म खत्म हो गए, वो थोड़े थोड़े से बचे होंगे, बहुत माइन्यूट बचे होंगे, देन यू जस्ट क्लीन दिस अप एंड देन यू गो बैक। बट नेक्स्ट टाइम में व्हेन यू कम बैक you will have understanding कि भाई भक्ति जहाँ से आपने छोड़ी है वहीं से शुरू करेंगे। जैसे भरत महाराज थे, when he became हिरण्य, when he became जड़ भरत, he started exactly where he was, भावा प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपनी भक्ति शुरू करी। So we never have to go back. So you're right, yes, we have to come back, we might have to come back, but there is a chance, there is a thing, if भगवान को चाहिए, if भगवान wants, if Prabhupada wants, if actually your spiritual master wants, if your spiritual master is so powerful, he can take you back to home. There are so many scriptural reference wo aapko next time deunga, where because of Guru the chela has gone back home, back to Godhead. So you don't even have to come back and do your term. There are references. Right. Thank you, Prabhuji. No problem. Suvana ji. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि हम लोग ये सब जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए, और हम लोग, हमारा जो एक ग्रुप है, हम जो चैंटिंग करते हैं साथ में इसीलिए करते हैं कि एक दूसरे का मोटिवेशन बना रहे हैं, और हम लोग इन चीजों पे जब भी डिरेल होते हैं तो वापस आते हैं। तो और लेकिन मेहनत तो सबको करनी है इस एरिया में। तो ऐसा क्यों नहीं होता, जैसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाणम, तो भगवान ऐसे एक ऊपर से दिखाते क्यों नहीं है कि देखो स्पिरिचुअल वर्ड ऐसा दिख रहा है, तुम्हें ऐसा करना है तभी आ पाओगे ऊपर, सो दैट यू कैन क्लियरली सी कि क्या करना है। तो ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के क्यों रखा हुआ है कि एक लीडर से पता चलेगा कि ऐसा होता है, वो भी तुम्हें, क्योंकि सबके अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होते हैं, कोई थोड़ा अपनी मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि हम डिफरेंट लेवल्स पे सब काम करते हैं, कोई क्वेश्चन करेगा, कोई सबमिसिव मोड में होगा, नहीं होगा, बट एक होता है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी एंड दैट यू कैन सी, तो सबको पता होगा कि भाई देखो ये करना है तो ये सब होना ही है। तो ऐसा साफ साफ क्यों नहीं दिखाते हैं? अमेजिंग स्वर्ण जी, दिस इज अमेजिंग। एक्चुअली साफ साफ तो छोड़ो, ऐसा क्यों नहीं कि भगवान खुद ही आ जाते हैं कि तो देखो ऐसा है, आई एम कृष्णा, आई एम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तुम्हें मुझसे जो क्वेश्चन पूछना हो पूछो, तुम्हें जो करना हो मैं करके दिखा देता हूँ, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि चलो मेरे साथ। ऐसा क्यों नहीं करते भगवान? एक्चुअली ऐसा उन्होंने करा था। He came back, he came here. Duryodhan saw him, Kamsa saw him, all of these people, they saw him. Bhagwan comes, he actually personally, he doesn't have to come, but he came, he said, hey, I'm the supreme. He actually said, आप अगर देखोगे भगवत गीता में, he says, aham sarvasya, everywhere he writes, I am Bhagwan. He says, I am Bhagwan. I am Supreme Personality of Godhead. Everything emanates from me. I am the Supreme. वेदेश सर्वे अहम वे वेद्यो, वेदांत वेदों का सारा जो गेम है वो सारा का सारा मेरे तक पहुंचने के लिए। He said it. Who saw it? Everyone saw it. है ना? लेकिन क्या होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, जब हमारे पास क्या है, हमारी डिजायर नहीं है ना, भगवान will never come and हम लोग, क्योंकि हमारी डिजायर के कारण हम लोग यहाँ आए हैं, हमारी डिजायर के कारण हम लोग उनको भूल गए हैं, हमारी डिजायर के कारण वी डोंट वांट टू नो हिम। और आप कह रहे हो ना कि he should come and show us this is the spiritual world. He is actually shown us even in Kali Yuga. He's showing us the spiritual world through these books, or he's showing us through Srila Prabhupada. He's showing us through all these acharya. He's showing us through Bhagavad Gita and all those these classes that we are doing. लेकिन क्या होता है, we need to have that kind of प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना. We need to have काजल, अंजन का मतलब होता है काजल. We need to have kajal of prema. For if we don't have that anjan of prema, we can't see it. We can't see the Lord. वो जो अंजन है ना, प्रेम का काजल लगाने का जो प्रोसेस है, that is this bhakti that we are talking about. Because प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, भूल गया मैं आगे का, लेकिन इसमें क्या है कि when you put that anjan of prema
and then you can see the Lord. When you can see the Lord, you will understand it and you'll forget and you'll go back home, back to Godhead. Now, the reason why भगवान आता नहीं है, हमें बताता नहीं, क्योंकि उसको भी हम लोग मजाक बना देंगे. दुर्योधन ने मजाक बना दिया, रावण ने मजाक बना दिया. रावण के सामने दुर्योधन ने तो कृष्णा को बोला इसको पकड़ लो, और जब पकड़ने गए उनको, and he showed the विराट रूप, the whole universe you can see in him. उससे ज्यादा हमें कोई ऐसे चुटकी बजा के आग निकाल के दे देता तो हम लोग कहते वाओ, वहां पर उन्होंने पूरा यूनिवर्स दिखा रखा है. एंड देन स्टिल ही, सो इट्स नॉट, भगवान इज ट्राइंग एवरीथिंग. इट्स लाइक हमारी बुद्धि में हमारे इतने सारे लेयर्स आ गए ना आंखों के आगे कि हमें वो दिखता ही नहीं है. तो व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज क्रिएटिंग ए मैजिकल काजल फॉर अस व्हिच इज कॉल्ड प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, है ना. भक्ति का अंजन लगाएंगे, प्रेम का अंजन लगाएंगे, और वो जो काजल बनाने का जो टेक्निक है वो दिस इज भक्ति, चैंटिंग द होली नेम स्लोली एंड ग्रेजुअली. बिकॉज उसके बिना वो आएंगे भी ना तो दिखेंगे नहीं. चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, ठीक है. हमारा देखो, इज देयर एनी डिफरेंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद? डू यू थिंक आवर सोसाइटी इज गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड? नो, इट्स स्टिल गोइंग अंडर. क्यों? he was here, Bhagwan Krishna 500 years ago he was here as Chaitanya Mahaprabhu, and still no, because we don't have Premanjan Churit Bhakti Vilochana. We don't have those anjan of we don't have those special eyes with love, and that love we need to develop through chanting. And when we do that, then we can see him face to face. These people, I'm telling you, Swarnaji, Prabhupada and these people, they used to see Krishna. They can see Krishna face to face. Prabhupada, when he was writing, he said he used to read his own books. तो लोग कहते थे Prabhupada आप अपनी लिखी हुई बुक पढ़ रहे हो ना, what's the problem? Prabhupada कहते हैं I did not write these books. Krishna dictated it to me and I just put it in words for you, but it's for me as well. So he used to read his own books. So it's very important that we understand that we need those kind of, because Bhagwan is ready to do anything, literally. But one thing he will never do is he will never force us. He will show us, but he will never force us. He will never force us, because that's our free will. We have desired to be here. We desired to forget him. We desired not to be with him. We desired, and he respects our desires. But he's really missing us. So it's our responsibility that we should do everything and anything to go back to him somehow or other. And we get other people as well with us. Does it make sense, Suvarna ji? Yes. और शायद जैसे आपने पहले भी कहा था कि there is a reason कि हम सब साथ में क्यों हैं. तो probably this is his way to create that, reactions. Yeah. तो अभी जैसे एक आपने कहा कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, तो अभी हमारे टाइम में भी कोई होंगे क्या ऐसे जिनको हम देख पाएंगे? नहीं, एक्चुअली हमारे स्क्रिप्चर्स में चैतन्य महाप्रभु के बारे में सारा लिखा हुआ है. श्रीमद् भागवतम में काफी सारे वर्स हैं चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन उनके इस हमारे टाइम में कोई वो नहीं है. लेकिन हमारे टाइम में एक वर्स है, वो भी हम लोगों ने मिस कर दिया. शिला प्रभुपाद इज मेंशन्ड इन देयर मोरा सेनापति भक्ता. चैतन्य महाप्रभु खुद ही कहते हैं कि वन ऑफ माय सेनापति भक्ता will go to Western countries and bring the white people who will be dancing on the streets with mridanga and kartal, chanting the name of the Lord. He predicted that, and Chaitanya Mahaprabhu predicted that, and we missed him by what? Maybe probably 20-30 years, but he was here. He is the bhakta, and भगवान ने बोला है. So scriptural reference नहीं है कि हम लोग अपनी lifetime में किसी को ऐसा देख सकेंगे, but there is a very big thing which is called ये जो कलयुग है ना, कलह देश निधे राजन हस्ती एक महान गुना, मैं भूल गया, बट इसका वर्स का क्या मतलब है कि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक जबरदस्त चीज है जिसके लिए इवन डेमीगॉड्स वांट टू टेक बर्थ इन कलयुग इन ऑन अर्थ, बिकॉज सिर्फ चैंटिंग द होली नेम, सिर्फ हरि नाम लेने से यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड. सिर्फ हरि नाम, because it takes care of everything. Lekin we should not be very rigid. If you don't brush your teeth, Harinam is not gonna give you a beautiful smell in your mouth. ठीक है, वो हमें करना पड़ेगा. When Harinam is for your spiritual well-being, for your physical well-being, you have to exercise, you have to keep yourself clean and all those sort of things. Harinam is definitely gonna help you with your spiritual life, with your heart, cleaning your heart, so that we can understand the Lord better. Make sense, Madhu? Yes, thank you, Prabhuji. No worries. Pooja ji.
Hare Krishna Prabhuji. I was just wanting to extend on Suvarnaji's question, and I think 3-4 sessions ago you did explain how Vaikuntha is. I think in one of the Bhagavad Gita classes only, Vaikuntha ka pura definition, how it is, you know, how it looks. There's no Dukhalaya is not. It doesn't even exist there. There is no pain. There is no sorrow. There is no guilt. So वो definition was something that was kept me going कि हाँ चलो ये सब जो यहाँ पे experience कर रहे हैं at least वो तो वहाँ पे नहीं experience करना पड़ेगा. हाँ नहीं बिल्कुल सही. So that was that's what I wanted to ask, and I forgot my question. That's okay. That's okay. I'll ask in Friday's class. हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. So thank you very much everyone. Really appreciate it and thank you. And मेरे को आज किसी ने बहुत अच्छी चीज बोली है. बोली थी service does not mean change people, है ना? Service का क्या मतलब होता है? Serve people so that they can actually get better. Not changing. Changing is not our thing. Our thing is not to change, to serve. और दूसरी चीज I've learned very nice today. अगर आप लोग अपना ये time देके, you know, you have spared this time to come to this class. And this is the reason I can do this service. You know? And this is the you guys are fulfilling my need to serve. So this is the gratitude. I cannot thank you guys enough. आप लोगों के कारण, you know, I get to read this Srimad Bhagavatam. I get to speak about the Lord, and I get to have darshan of so many beautiful, you know, devotees. I really appreciate. I want to thank you for giving me this opportunity to serve each one of you. I really want to thank you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Samved Bhakta Vrande ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna.